What's up, everyone? Praful here. Welcome back, and thanks for joining in. First video of 2024. First of all, I wish you guys a very happy new year. May all your ambitions, aspirations, wishes come true this year. So, this video, I'm going to be very quickly talking about my December PNL and my overall 2023 ka PNL. And I'm going to summarize what has changed in the market, what structural changes that have come in the markets, and what would be my approach, and some words of caution for you guys, especially for someone who's trying to start off their trading career and who want to quit their jobs and who want to take trading as a full-time career. So सारे चीजें करेंगे. I wanted to put out a video for my December PNL and then मैंने सोचा कि मतलब सिर्फ December PNL के लिए फिर से एक नया वीडियो क्यों डालूं. So I'm gonna club everything and that's why this video is gonna be little longer, so bear with me. So in the month of December, the realized PNL, the gross PNL is somewhere around 11.93 lakhs, close to 12 lakhs, and around 1.13 lakhs is the charges. And we made a net profit of 10.8 lakhs. So on the margin of around 1.5 crores, this turns out to be somewhere around 7%. 7% net है तो 8% gross है. ठीक है, दिस इज फॉर दिसंबर. अगर ओवरऑल 2023 का बताऊं पूरा साल में, सो द स्टार्टिंग मार्जिन वाज समवेयर अराउंड 1.02 करोर्स. अब जाके जनवरी 2023 का आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, तो वहां पे कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, कितना मतलब फंड्स अवेलेबल है, वो सारे मेरे प्रीवियस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपको दिख जाएगी. द ग्रॉस रिटर्न्स, ठीक है, ग्रॉस बिफोर चार्जेस एंड ब्रोकरेज इज 93.28 lakhs. The charges turn out to be somewhere around 14.27 lakhs and the net returns is somewhere around 79 lakhs, which turns out to be 78% returns. And max drawdown जो हुआ है, this is 2.3%. So this is where I take my win, because मेरे को ना रिटर्न से इतना ज्यादा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम मोर फोकस्ड ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. मतलब ये रिटर्न कमाने के लिए मैं कितना रिस्क लिया हूं एंड कितना ड्रॉडाउन झेला हूं. सो फॉर 78% रिटर्न्स आई हैव टेकन अ मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ 2.3%. एंड पूरे 250 डेज में ऑलमोस्ट सारे के सारे डेज मैंने ट्रेड किया हूं. अगर आप हीट मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा. एंड आउट ऑफ दैट only 3 days I've taken a loss of more than 1% and 7 days I've taken a loss of more than 0.5%. So टोटल 3 + 7 10 ही दिन मैंने मोर देन 0.5% मैंने लॉस लिया हूं एंड आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल द मैक्स ड्रॉडाउन बिलो 3%, 2.3%. यूजुअली ना मैं थोड़ा ज्यादा सेल्फ ओवर क्रिटिकल रहता हूं, तो हमेशा मेरे खुद के मिस्टेक्स के बारे में बात करता रहता हूं. आई ऑलवेज टेंड टू कीप क्रिबिंग अबाउट हाउ टफ द मार्केट्स वर एंड हाउ रुथलेस द मार्केट्स वर एंड मैंने क्या गलती की, सिर्फ इसके ऊपर ही बात करता रहता हूं मैं हमेशा. बट टुडे आई एम नॉट गोना बी टू ओवर क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ and I'm going to take a win on whatever the performance that I've got. So yeah, it has been a decent year, if not a great year. ये हो गया रिटर्न्स के बारे में, नंबर्स के बारे में. बट अगर आप देखते हैं, लाइक इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, बिफोर आई यूज्ड टू ट्रेड ओनली वन एक्सपायरी एवरी वीक, दैट वाज निफ्टी एक्सपायरी 2021 में. इवन विथ वन एक्सपायरी आई यूज्ड टू जनरेट 4 to 5 to 6% रिटर्न्स. Now in 2022, Finifty expiry got introduced in the month of June or something, and in 2022 I was again trading with only 2 days, and again there also like I was able to generate 4, 5, 6% on an average. अब पांचों एक्सपायरी ट्रेड करता हूं मैं and I'm still gunning for just 4, 5, 6%. So what has happened here now is, one, my screen time has increased. Screen time मेरा increase हो चुका है because like I'm trading pretty much all the expiries. Two, my risk appetite has gone down. Before मैं 2% का रिस्क आराम से उठा लेता था हर एक्सपायरी में because the opportunities were less. क्योंकि मुझे हफ्ते में सिर्फ एक एक्सपायरी मिलती थी या 2 एक्सपायरी मिलती थी, अब मुझे 5 एक्सपायरी मिल रहा है. So my risk appetite has gone down, my screen time has gone up, my efforts have gone up, but the risk adjusted returns have gone up. तो यहां पे जो पैसे बन रहा है, जो ये पैसा है, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी का है, डिसिप्लिन का है और मजदूरी का है. ठीक है, तो जो पैसे बन रहा है वो मजदूरी का है. मतलब लाइक एवरी डे आई एम शोइंग अप टू द मार्केट्स एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस एग्जैक्ट सेम थिंग डे इन एंड डे आउट. सो पैसे जो है वो कंसिस्टेंसी का है. ऑफ कोर्स अगर आप कोई लॉजिकल चीज को कंसिस्टेंटली करते हैं तब भी रिजल्ट्स आएंगे. अगर आप इलॉजिकल चीज को कंसिस्टेंट करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है. इट हैजंट बीन एन इजी राइड 2023. ठीक है, मतलब यूट्यूबर्स और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे मतलब लोग आके खुद प्रॉफिट कभी किए ही नहीं है, बट आपको आके बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी यूज करो, बहुत आसानी से प्रॉफिट बनता है. मार्केट में तो एकदम 1 का 10 बनाना तो हलवा है, 1 का 2 बनाना तो हलवा है. महीने में 10% निकाल सकते हैं, महीने में 20% निकाल सकते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं. बट
मैं आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल डाल रहा हूं और 80-90 लाख का मतलब एक साल में प्रॉफिट बनाए हूं मैंने, दैट टू ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़। इसके बावजूद भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि मार्केट्स आर नॉट इजी। ठीक है, जब लोग बिना प्रॉफिट किए हुए कोर्स बेचने के लिए आपको ये बोलते हैं कि आओ भाई मेरा स्ट्रैटेजी ले लो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बहुत आसान है, 15 मिनट स्पेंड करो मार्केट में हर रोज और इतना पैसा बन जाएगा। आई एम टेलिंग यू विथ माय वेरीफाइड पीएनएल दैट मार्केट्स आर नॉट इजी, मार्केट्स आर हार्डर एंड दे आर ओनली गोइंग टू गेट हार्डर। क्यों? बिकॉज द अवेयरनेस अमंग द मासेस इज इंक्रीजिंग। जो लोग मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, दे आर कमिंग विथ अ लॉट ऑफ नॉलेज, प्रायर नॉलेज, लॉट ऑफ अवेयरनेस, एंड दे आर नॉट कमिंग हियर टू प्योरली गैम्बल। तो काफी लोग रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ आ रहे हैं, एक जो भी मतलब इफ नॉट द बेस्ट सिस्टम, दे आर कमिंग अप विथ सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। उनका डे का लॉस फिक्स्ड रहता है, कुछ ना कुछ रिस्क मैनेजमेंट रहता है, एंड देन मोस्ट ऑफ देम लाइक दे हैव काइंड ऑफ ऑटोमेटेड देयर ट्रेड्स। I feel that it's gonna be even harder going forward in 2024 because इस साल बजट भी है and we have the general elections, and which is एक 5 साल में एक बार आता है, and the markets are gonna be haywire, right? Markets मतलब बहुत volatile रहने वाला है, लोगों का स्टॉप लॉस इधर उधर दोनों तरफ उड़ने वाला है, बहुत ज्यादा स्पाइक्स आने वाला है, ऑप्शन प्रीमियम्स थोड़ा एराटिक बिहेव हो सकता है कि इंट्राडे में मार्केट 500-600 पॉइंट गिर जाएगा, 500 से 600 पॉइंट नेक्स्ट 5 मिनट्स में रिकवर भी कर देगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो ट्रेड विथ कॉशन, पोजीशन साइज कम रखो, रिस्क थोड़ा कम रखो, डोंट गन फॉर हायर रिवॉर्ड्स, डोंट बेस योर ट्रेड्स बेस्ड ऑन एनी एनालिस्ट्स व्यूज, क्योंकि भाई वो लोग खुद के पैसे कभी डाले नहीं है, वो बस व्यूज दे के अपना पैसे कमा रहा है, व्यूज दे के अपना जिंदगी बना रहा है। तो उनके व्यूज पे आपका ट्रेड्स नहीं बननी चाहिए, आप ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। एंड या लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन मेंटोरशिप प्रोग्राम। यस, मैंने लास्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने शायद सितंबर या अक्टूबर में लिया था, उसके बाद मैंने कोई मेंटोरशिप नहीं लिया था बिकॉज आई गॉट बिजी विद अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। एंड यस, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि अगले मेंटोरशिप बैच जैन में होने वाला है, बट देन आई थॉट अबाउट इट, it doesn't make sense to conduct a mentorship program in the month of Jan. Why? Because मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है? कोई ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं है कि भाई यहाँ पे एंट्री करो, इतना स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे एग्जिट करो, आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आई एम गोना टीच यू द आर्ट ऑफ शॉर्ट वॉल एंड शॉर्ट गामा ट्रेडिंग। तो द मेंटरशिप इज फॉर प्रोबेबली 2 to 3 वीक्स ड्यूरेशन रहता है। एंड अगर मैं जनवरी में आपको सिखाना शुरू करूंगा, देन व्हाट हैपेंस इज लाइव मार्केट में आपको एक स्क्यूड पिक्चर मिलने वाला है। व्हाई? सो बिकॉज वी हैव बजट कमिंग अप इन द मंथ ऑफ फेब। तो फेब फर्स्ट को बजट है, तो अगर उसके प्रीवियस 2 वीक्स और 3 वीक्स हम ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन का बिहेवियर काफी वियर्ड रहता है, राइट? वॉल्स काफी एराटिकली बिहेव करते रहते हैं, देयर वोंट बी एनी वॉल क्रश, कॉन्स्टेंटली वॉल्स विल बी ऑन द राइज। तो बेसिकली यू वोंट बी एबल टू लर्न द शॉर्ट गामा एंड शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो क्या हो जाता है, दिस हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ वेरी मेजर इवेंट, एंड इवेंट के हिसाब से वॉल्स को हम डिफरेंटली ट्रेड करते हैं, विच इज नॉट गोना हैपन ऑन अ डेली बेसिस। सो अगर मैं ये सिखाऊं कि मतलब इवेंट्स को कैसे ट्रेड करते हैं, इवेंट से पहले आपको कैसे पोजीशन करना पड़ेगा, अगर मैं सिखाऊं तो देन इट्स नॉट गोना बी ऑफ मच यूज फॉर यू इन द लॉन्गर रन। सो मैंने ये डिसाइड किया है, जैसे बजट खत्म होगा उसके अगले हफ्ते से मेंटरशिप बैच शुरू होने वाला है। एंड नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को पढ़िए, एंड वहां पे नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करिए, एंड द टीम विल हेल्प यू गाइस फॉर द एनरोलमेंट। एंड यस, ऑब्वियसली हर बार की तरह लिमिटेड सीट्स रहने वाले हैं, एंड इफ द सीट्स गेट फिल्ड आई कांट हेल्प यू, प्लीज डोंट अगेन टेक्स्ट मी टू अकोमोडेट यू गाइस। सो इसलिए मैंने काफी पहले बता रहा हूँ, लाइक व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 4th of Jan, राइट? तो मैंने 1 महीने पहले बता रहा हूँ, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो मैंने आपको क्लियरली मेरा व्यू पॉइंट बता दिया हूं कि why conducting a mentorship batch in the month of Jan would not be fair for you guys. ठीक है? तो that's why we'll have the mentorship program in Feb. कुछ पोस्टपोन नहीं होने वाला है, कुछ रीशेड्यूल नहीं होने वाला है। फर्स्ट वीक से थर्ड वीक के बीच हम लोग करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ना मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी या सेटअप नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है? आई एम गोना टीच यू द आर्ट ऑफ बिल्डिंग योर ओन सेटअप, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम द शॉर्ट वॉल फ्रंट एंड शॉर्ट गामा फ्रंट, ठीक है? उसका एक लॉजिकल तरीके से कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। बिकॉज अगर मैं आपको एक सेटअप सिखाऊं तो क्या होता है, सेटअप 3 महीने काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद करेगा, उसके बाद आप सोचोगे कि क्यों काम करना बंद किया, अभी काम करना बंद किया तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, एंड यू विल बी क्लूलेस। लुक एट लॉट ऑफ पीपल हु मेड मनी इन 2021 एंड 2022 बाय ट्रेडिंग टाइम बेस्ड straddles एंड strangles। अब उनका काम चल नहीं रहा,
and they are kind of clueless कि अभी कैसे tweak करना है, and they don't know how to tweak it because they don't understand the fundamentals, they don't understand the core principles. एक दिन का वर्कशॉप होगा या एक दिन का वेबिनार होगा, मैं 4 घंटे या 5 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, 4,000 5,000 रुपए में फीस रखूंगा, तो कितने लोग आने वाले, राइट? एंड दैट वुड बी लाइक गुड वन टाइम मनी फॉर मी एज वेल, बट मैं वो चीज नहीं करूंगा बिकॉज इट्स लाइक डूइंग डिससर्विस नॉट ओनली टू माई ओन फिलोसफी बट टू यू गाइस. यस, मैं आपको कुछ अच्छे वाले स्ट्रेटेजीज में सिखा सकता हूँ, बट क्या गारंटी है वो स्ट्रेटेजी आगे भी काम करने वाला है? नहीं. बट अगर मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, अगर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, अगर मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन. इसको आप यूज करके कुछ भी कर सकते हैं. हर एक इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल. So yeah, that was the rant. So all that said, I hope you guys also had a good 2023. Let me know in the comment section आपका trading performance कैसा रहा, आपका trading returns कैसा रहा, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.